کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے استثنا 5 باب اس کی 15ویں آیت کو جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ استثنا 5 باب 15ویں آیت جو ان سی ہے، جو سبت کے منکرین ہیں، جو مخالف ہیں، وہ اس آیت کو جو ان سے وہ لے کر وہ سبت کو جو ان سے ہے وہ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کلام خدا سے سیکھیں گے کہ استثنا 5 باب 15ویں آیت جو ہے وہ سبت کے متعلق جو ہے وہ کیا سکھاتی ہے۔ ہم اس کے لیے استثنا 5 باب اس کی 12ویں آیت سے جو ہے پڑھیں گے 15ویں آیت تک۔ استثنا 5 باب 12ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، تو یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کر پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن یہوہ خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں۔ استثنا 5 باب 15ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے یہوہ خداوند خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھے نکال لایا، اس لیے یہوہ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر جو سے جب آپ نے اس آیت کو پڑھا، استثنا 5 باب اس کی 12 سے 15ویں آیت تک، تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہوہ خداوند خدا قدوس کا کلام جو ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ سبت جو ان سا ہے اسے ہم نے ہر صورت جو ان سے ہے وہ منانا ہے۔ اور 15ویں آیت کو لے کر جو سبت کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 15ویں آیت جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی کی حالت میں تھی، مصر میں تھی، اس لیے یہ جو ہے کلام خدا 15ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے یہوہ خداوند تیرے خدا اپنے زوراور ہاتھ بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیونکہ بنی اسرائیل غلامی کی حالت میں تھی اور یہوہ خداوند خدا ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آتے ہیں، اس لیے خداوند خدا کلام خدا میں یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کو ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے غلامی کی حالت میں تھی، خدا قدوس نے غلامی کی حالت سے نکال کر باہر لاتے ہیں، اس لیے یہ سبت جو ہے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے جو ہے وہ ٹھہرایا گیا۔ ان سبت کے منکرین کو جو ان سے ہے سبت کی جو تخلیق ہے اس کو سیکھنا ہوگا۔ سبت کی تخلیق جو ان سی ہے وہ کلام خدا کے مطابق وہ کائنات کی تخلیق کے وقت جو ان سی ہوتی ہے، اور وہاں پہ سبت جو ان سے ابھی بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی، ابھی جو ان سے ہے بنی اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا قدوس جو ہے گناہ کا ابھی تک وجود نہیں ہے۔ جب سبت کو جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کو جو ان سے یہ جہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو سبب ہے، یہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ کلام خدا یہاں پہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ جو موشے ہیں، جو خدا قدوس کے نبی ہیں، وہ ایک دوسرا ریزن بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے اس سبت کو خدا قدوس نے کیوں جو ہے وہ پاک ٹھہرایا، کیوں جو ہے 7ویں دن جو ان سے کلام خدا کے مطابق سبت کو جو ان سے وہ مقرر ٹھہرایا بنی پوری قوم کے لیے، جو ان سے بنی اسرائیل کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اسے آرام کا دن ٹھہرایا، کیونکہ وہ یہ یہاں پر موشے ایڈ کر رہے ہیں، ایک اور ریزن کو ایڈ کر رہے ہیں،
استثنا 5 باب 15 آیت میں بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ جو ہیں مصر میں غلام تھے، آپ اپنے خدا قدوس کی شریعت کی نافرمانی کے سبب سے جو ہے آپ پہ جو ہے خدا قدوس نے جو ہے عذاب نازل کیا اور آپ 400 سالہ جو ہے غلامی کے اندر چلے گئے، اور وہاں سے خدا قدوس جو ہے آپ کو اپنے قوی زوراور ہاتھ سے چھڑا کر لائے ہیں، اور یہ سبت جو ہے یہ جو مقرر کیا گیا تخلیق کائنات کے وقت، یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ جو ہے جو اس ریزن، یہ ایک اور ریزن جو ہے وہ سبت کا ایڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ریزن کے سبب سے بھی جو ہے کیونکہ 7واں دن جو ہے آپ کو اپنے کام کاج کو چھوڑنا ہوگا اور خدا کی حضوری میں جو ہے وہ آنا ہوگا، اس لیے موشے جو ہے وہ زور دے کر کہہ رہے ہیں 15ویں آیت کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں استثنا 5 باب اس کی 15ویں آیت، تو وہاں پہ موشے زور دے کر فرماتے ہیں اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا۔ وہ بنی اسرائیل غلامی کی حالت میں ہے، اور جب بنی اسرائیل غلامی کی حالت میں ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مصری جون سے ہے ان کو ان کی شریعت کے مطابق جو ہے ان کو احکام خداوندی کے مطابق انہیں 7ویں دن آرام بخشیں، اور اس آرام کے نتیجے میں وہ کام کاج نہ کریں، اور وہ جو ان سے خدا قدوس کے حضور جو ہے وہ سبت کو جو تخلیق کائنات کے وقت مقرر کیا ہے اس کو منا سکیں۔ موشے نے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ آپ اس وقت جب غلامی کی حالت میں تھے، جب خدا کی نافرمانی کے باعث آپ غلامی کی حالت میں گئے، آپ پر ظلم ہوتا تھا، آپ جو سے مصر میں جو ہے غلام تھے، آپ کو وہاں پر جو سے کسی قسم کی سہولت حاصل نہیں تھی، آپ جو سے ان کے رحم و کرم پہ تھے اپنے آقاؤں کے، آپ کو جو ہے وہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس خدائے قدوس کے حکم کو جو ہے بجا لائیں۔ آج آپ کو خدائے قدوس نے اپنے ہاتھ سے چھٹکارا دیا ہے، اپنے قوی بازو سے اس غلامی سے رہائی دی ہے، اس لیے یاد رکھنا کہ آپ اس وقت غلام تھے اور اب آپ غلامی میں نہیں ہیں، اس لیے آپ جو سا ہے اس وقت تو آپ کے پاس ایک عذر تھا کہ ہم غلام ہیں، ہم جو سے ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آج آپ کو خدائے قدوس نے پھر سے جو سا ہے غلامی سے رہائی دی ہے، اور آپ کو یہ بخشا ہے کہ آپ اس کے مقرر کردہ سبت کو جو ہے منا سکیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبت جو سا ہے اس کے منانے کی 2 ریزنز جو سی ہیں کلام خدا پیش کرتا ہے۔ ایک ریزن جو ہے خروج کی کتاب میں جو ہے وہ 20ویں باب اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ استثنا 5 باب اس کی 12 سے 15ویں آیت میں جو ہے دوسرے ریزن کو دیکھتے ہیں، جہاں پر یہ کلام فرما رہا ہے کہ آپ غلامی کی حالت میں تھے اور اب آپ کو غلامی سے آزادی ملی ہے، اس لیے بھی آپ جو ان سے اس سبت کو جو ہے وہ اب آپ کا عذر نہیں ہے، وہ منائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ یہ 2 ریزن جو سے ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہم آج جو سا اس میں جو سیکھ رہے ہیں استثنا 5 باب اس کی 15ویں آیت کو، جو کہ دوسرا ریزن ہے سبت کو منانے کا، ہم اس کے اندر جو سے ہے اس کو آج مختصر طور پر سیکھیں گے، آسان پرائے میں سیکھیں گے، اور جو اس کی اگلی جو سی ہے اس میں ہم خروج 20 باب 8 سے 11 آیت اور استثنا 5 باب 12 سے 15ویں آیت کی آیت با آیت جو سی ہے اس کا جو ہے کلام خدا سے مطالعہ کریں گے۔ وہ ایک لینتھی ٹاپک ہوگا، اس کے اندر جو سے ہم تفصیل کے ساتھ جو سے یہ خروج جو پہلا ریزن دیتا ہے 20 باب 8 سے 11 آیت میں، اور استثنا جو دوسرا ریزن دیتا ہے سبت منانے کا 5 باب 12 سے 15ویں آیت میں، ان کو تفصیل سے جو سے دونوں کا سملیرٹیز، دونوں کے جو سے ہیں جو ڈفرنس ہیں اور ریزنز ہیں ان کو جو ہے تفصیل سے سیکھیں گے۔ آج جو ہم سیکھیں گے مختصر طور پر جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا جو ہے استثنا 5 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ کلام خدا میں جو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ موشے بنی اسرائیل کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو سا ہے آپ کو خدا قدوس جو ہیں وہ
सबत को मनाने का हुक्म देते हैं। वो ये कहते हैं, Therefore Yahweh thy God commanded thee to keep the Sabbath day. वो फरमा रहे हैं कि आपको जौन सा है, आपके यहोवा खुदा ने जौन सा आपको ये हुक्म दिया है, इसलिए यहोवा तेरे खुदा ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया है। 12वीं आयत बयान करती है, तो यहोवा खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सबत के दिन को याद कर पाक मानना। ये हुक्म जौन सा है, ये बनी इस्राएल जो है, जो उन्हें कोई होरेब की पहाड़ी पर जो है वो दिया गया है, इसको मुकर्रर जो किया जाता है वो तख्लीक कायनात के वक्त मुकर्रर किया जाता है। मोशे जो है उन्हें याद करा रहे हैं कि याद करें, आप गुलामी की हालत में थे, जहां पे आप जौन सा है सख्त आप पे जुल्म होता था, आपको जौन सा अपने दिल की मर्जी के मुताबिक, शरीयत के जौन से कलाम के मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक, खुदा के आयन के मुताबिक आपको अपनी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं थी, जब क्योंकि आप गुलामी में थे, और जिस तरीके से आका आपको जौन सा है वो बताते थे उसी तरीके से आपने करना होता था। यहाँ पे इस्तिस्ना 5 बाब 12 से 15वीं आयत का मुतालिया करें तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हर किस्म के जौन सा, चाहे जानवर होगा, चाहे इंसान होगा, चाहे मुसाफिर होगा, उसको भी सबत के दिन जौन सा है खुदाए कदूस के हुक्म के मुताबिक आराम करना होगा और उसकी हुजूरी में आना होगा। यहाँ पे मोशे जौन सा जो बयान कर रहे हैं, दूसरा रीजन वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको जौन सा जो सबत को मनाने का कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप उस जौन सा उसका एहसास कर सकें कि आप भी कभी जौन सा गुलामी की हालत में थे, आज आप आजाद हैं, आपके गुलाम को जौन सा है ऐसा ना हो कि आपका गुलाम जौन सा है, क्योंकि आप आजाद हैं, आप तो इस खुदा के हुक्म को मना रहे हो, लेकिन आपका गुलाम जौन सा है वो जो है आप उसके ऊपर सख्ती करें, उसे काम के लिए मजबूर करें, उसे जौन सा है रोजमर्रा के कामों से छुटकारा ना दें। आप याद रखें कि आप भी गुलाम थे कभी, और आज आप खुदाए कदूस के कभी बाजू से आजाद हुए हैं। आप पर लाजम है कि उसको देखते हुए आज जो ये 7वां दिन है, आपका गुलाम भी जौन सा है इस हुक्म की पैरवी करे। हम जौन सा है खरूज 23 बाब उसकी 12वीं आयत का जब मुतालिया करें तो कलाम खुदा हमें यूं बताता है, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाएं। खुदाए कदूस जौन सा बनी इस्राएल को जो है ये बयान कर रहे हैं मोशे की मार्फत। मोशे जो जिन्हें आम उर्फ आम में मूसा कहा जाता है, मूसा जो है उनका नाम नहीं है, इब्रानी जुबान में मोशे है। और नाम को जौन सा जैसे कि हमने सीखा कि आप किसी भी तौर पर जगह की तब्दीली या जुबान के इर्तिकाई अमल से गुजरने के बावजूद, जुबान की तब्दीली के बावजूद नाम जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। मोशे जो है बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि आप भी कभी अपनी नाफरमानी के बायस, खुदा के हुक्मों से दूर करदानी के बायस गुलामी की हालत में थे। आज आपको खुदा ने गुलामी से जो है रिहाई बख्शी है, आप उस गुलामी को मत भूलिएगा। आज जो आपके गुलाम हैं उन्हें भी जौन से खुदाए कदूस ने इस दिन को मुबारक ठहराया है, ताकि इस दिन जो है उसकी जो है इबादत हो सके। आपका गुलाम भी जौन सा है उसी तरीके से, जिस तरीके से आप पर यह हुक्म फर्ज है, उस पर भी हुक्म फर्ज है, वो भी किसी किस्म का कोई काम ना करने पाए और वो भी जो है खुदाए कदूस की हुजूरी में ठहर सके। हम यहां पर देखते हैं कि जो ये सबत की तख्लीक है, ये पैदाइश 2 बाब उसकी 3री आयत में जौन से है वो होती है। वहां पे कलाम खुदा बयान करते हैं पैदाइश 2 बाब 3री आयत में, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उससे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। सबत जौन सा है ये बनी इस्राएल से मिस्र की गुलामी से रिहाई के वक्त जौन सा मुकर्रर नहीं किया गया कि वो अब इसे मनाएंगे। सबत जौन सा है वो खुदाए कदूस ने तख्लीक कायनात जब वो मुकम्मल करते हैं तब वो 7वें दिन को जो है मुकद्दस ठहराते हैं,
तब उसे जो से अपना दिन ठहराते हैं, तब वो ये कहते हैं कि मेरा ये दिन है जिस दिन जो से है आप मेरे हुजूरी में आएंगे और उस बरकत को जो मैंने आपके लिए मुकर्रर की है उसको हासिल करेंगे। हर वो शख्स जो कि उसकी हुजूरी में इस दिन अपने आप को रोके है, उसे खुदा की बरकत से महरूम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये खुदा कदूस का जो है वादा है कि इस दिन में जो मेरे हुजूरी में आएगा, जो मेरी जो से कलाम को सुनेगा, जो मेरे कलाम की तरफ रुजू करेगा, जो मेरे हुजूरी में आकर मुझे जलाल जो से है वो देगा, अपने होंठों से अपने बदनों से जलाल जो है वो देगा, मैं उसे आसमान से उस पर निगाह करूंगा और उससे जो से थाम लूंगा और उससे बरकतों पर बरकतें दूंगा, आसमान के दरीचे खोल दूंगा। आज हम पर यह लाजिम है उन सबत के मुनकरीन को जो सबत को जो से है मानने ना मानने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशते हैं। सबत जो से है बड़े वजाहत से पैदाइश 2 बाब 30 आयत बयान करती है कि सबत जो से है खुदा कदूस ने तख्लीक के कायनात की तकमील के वक्त 7वें रोज मुकर्रर किया, ना कि बनी इस्राइल को जब वो मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे उस वक्त ठहराया, क्योंकि वो ये बयान करते हैं कि देखें सबत तो जो है बनी इस्राइल के लिए ठहराया, क्योंकि बनी इस्राइल जो है मिस्र की गुलामी से निकलती है, इसलिए सबत जो है उनको दिया गया। सबत जो है पैदाइश 2 बाब 30 आयत में तख्लीक के कायनात की तकमील के वक्त मुकर्रर किया गया। इसका बनी इस्राइल की गुलामी से निकलने के साथ किसी भी किस्म का जो है वो ताल्लुक नहीं है। ये कलाम खुदा जो से आपको बताता है जो एक्सोडस है जिसे आप मिस्र से गुलामी की रिहाई कहते हैं, ये वो आराम है जो कि खुदा कदूस ने बनी इस्राइल को एक मरतबा फिर से अता किया, ताकि बनी इस्राइल जो है खुदा कदूस के आराम में दाखिल हो सकें। खुदा कदूस ने वो आराम जो मुकर्रर किया है, वो दिन जो मुकर्रर किया है, ताकि बनी इस्राइल जो सी है उस दिन की हुजूरी में आ सकें। खुदा कदूस जो से बनी इस्राइल को एक दफा से फिर से अता करते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखते हैं तो बनी इस्राइल जिस दिन जो है वो रिहाई पाते हैं वो सबत का दिन है। सबत के दिन बनी इस्राइल जो से है वो कूच करते हैं। आप जो से है आज हम सीख रहे हैं, इसमें हम आज आयत ब आयत खरूज के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। 20वें बाब की 8 से 11 आयत तक हम इसको नेक्स्ट टाइम में जो है तफसील से सीखेंगे। आज हम महज जो है इसको आसान प्राय के अंदर देखेंगे कि सबत जो है वो तख्लीक कब हुआ। सबत तख्लीक आपने देखा कलाम खुदा से पैदाइश 2 बाब 30 आयत में तख्लीक कायनात की तकमील के वक्त 7वें रोज मुकर्रर किया गया। हम जो है इसको जब देखते हैं, हमने सीखा कलाम खुदा के अंदर से इस्तिस्ना 5 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत के अंदर के सबत जो है उसकी तख्लीक जो सी है वो जो इंस्टीट्यूट हो रहा है, जो बनाया जा रहा है, जो मुकर्रर किया जा रहा है, वो पैदाइश 2 बाब 30 आयत में बयान कर रहा है। और दूसरा रीजन जो है कलाम खुदा ये बयान कर रहा है कि मैं जो सा हूं ना सिर्फ कायनात की तख्लीक करने वाला, और उस कायनात की तख्लीक के वक्त जब मैं तकमील करता हूं तुम्हारे लिए एक दिन मुकर्रर करता हूं, ये सबत मुकर्रर करता हूं, क्योंकि वो हमारा तख्लीक करने वाला खुदा है। और आज वो मोशे की मार्फत बनी इस्राइल को जो है पैगाम दे रहा है कि ना सिर्फ मैं तेरा तख्लीक करने वाला खुदा हूं बल्कि मैं तेरा बचाने वाला खुदा भी हूं। और ये वो 2 रीजंस हैं जिसकी बिना पर जौन सा है सबत जौन सा मनाने का हुक्म दिया गया है। पहला रीजन कि गॉड इज आवर क्रिएटर, खुदा हमारा तख्लीक करने वाला है। और दूसरा रीजन गॉड इज आवर रिडीमर, खुदा हमारा जौन सा है बचाने वाला भी है। ये वो 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से सबत जौन सा कलाम खुदा के अंदर मुकर्रर किया गया है। हम इसको जो है जो सीखते हैं, सवाल चंद एक जो है इसके अंदर रखेंगे उन मुनकरीन से जो सबत के हवाले से सबत को जो है इनकार करते हैं। हम इस्तिस्ना 5 बाब की 6 से 7वीं आयत का मुतालिया करते हैं और वहां पे उनसे ये सवाल करेंगे इस कलाम की बाबत।
इस्तिस्ना 5 बाब 6 से 7वीं आयत। तब उसने कहा, यहोवा खुदावंद तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं, मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना। अगर यही चीज जौन सी है वो यही फॉर्मूला यही कुलिया जौन सा वो लगाते हैं कि देखें क्योंकि वो गुलामी की हालत में थे और क्योंकि खुदा कदूस ये वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि मैं तुझे गुलामी की हालत से निकाल के लाया हूं, इसलिए जौन सा तूने सबत को मनाना है। तो यहां पे भी 5वें बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में कलाम खुदा के मुताबिक खुदा कदूस जो है फरमा रहे हैं कि मैं तुझे मिस्र की गुलामी की हालत से निकाल कर लाया हूं, इसलिए तू किसी और खुदा को ना मानना, किसी और मबूद को मेरे आगे मत जौन से मानना। तो अगर जौन से सबत जो है जो ये ठहरा रहे हैं क्योंकि वो मिस्र से गुलामी से हालत से निकले हैं, इसलिए खुदा कदूस फरमा रहे हैं कि सबत जौन से तुम्हें मैंने दिया है। यहां पे भी खुदा कदूस ये फरमा रहे हैं कि मैं तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया हूं, मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना। तो फिर वो लोग जो सबत के मुनकरीन है, फिर वो ये उनके लिए हुक्म नहीं है, फिर उनके लिए एक खुदा का हुक्म नहीं रह गया, क्योंकि ये भी फिर सिर्फ जौन से बनी इस्राएल को दिया जा रहा है और बयान किया जा रहा है कि क्योंकि तुम्हें मैंने निकाला है इसलिए सिर्फ तुम पर जौन सा ये लाजम हो गया कि जो है तुम किसी और खुदा को ना मानना। सबत के मुनकरीन अगर इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि वो सबत उनके लिए सिर्फ बनी इस्राएल के लिए है क्योंकि वो गुलामी से निकले, तो फिर 6 और 7वीं आयत को भी उन्हें ये सीखना होगा और फिर ये उन्हें बताना होगा कि एक खुदा जौन सा है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये भी सिर्फ बनी इस्राएल के लिए ही है। हम इसी तरीके से इस्तिस्ना 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में आते हैं और 16वीं आयत में देखते हैं वहां पे कलाम खुदा क्या बताता है। कलाम खुदा 5 बाब इस्तिस्ना के 16वीं आयत में यूं फरमाता है, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना जैसे यहोवा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क यहोवा खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। अब यहां पे भी जौन सा आप देखें कि बनी इस्राएल को जौन सा है मोशे की मार्फत जो है खुदा कदूस फरमा रहे हैं कि आप अपने मां बाप की जो है इज्जत करना। इज्जत क्यों करना? ताकि जिस मुल्क में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं वहां पर तेरी उम्र की दराजी हो। अब आप और मैं अगर जौन सा है ये कहते हैं क्योंकि बनी इस्राएल जो है उसे मिस्र की गुलामी से रिहाई दी गई और उसे जौन से सबत मनाने का हुक्म दिया गया, तो यहां पे भी ये हुक्म मां बाप की इज्जत का जो है बनी इस्राएली को दिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके कहने के मुताबिक उन्हें एक नया मुल्क दिया जा रहा है। आपको उस मुल्क में रहने की अभी इजाजत नहीं दी गई, आपको जौन से उस मुल्क में नहीं पहुंचाया गया। कलाम खुदा बता रहा है ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क यह वक्त तेरा खुदा तुझे देता है, आपको अभी जौन से मुल्क नहीं दिया गया। और अगर आपको मुल्क नहीं दिया गया तो फिर आपके कहने के मुताबिक आप पर यह हुक्म जो है वो नाफिज नहीं होता। आपकी जो है माँ बाप के आपको इज्जत करने की जरूरत नहीं ठहरती, क्योंकि ये हुक्म भी जौन सा है वो खुदा कदूस ने जो है बनी इस्राएल को दिया है। हमें जौन सा है या तो खुदा कदूस के हुक्म को मनो अन मानना होगा, अपनी तरजीहात को जो है छोड़ना होगा, अपने कलाम सुनाने वाले की नासमझी को रद्द करना होगा, अपने जहनों को उसके कलाम के लिए तैयार करना होगा। तभी हम खुदा कदूस के अहकाम को जो है वो सीख सकेंगे। हम एक और हवाले के अंदर इन मुनकरीन से जो है सवाल करेंगे। एहबार की किताब 11वें बाब में चलते हैं। एहबार की किताब उसका 11वां बाब और उसकी हम 45वीं आयत में आएंगे। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि मैं यहोवा खुदावंद हूं और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूं कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, इसलिए तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कदूस हूं। अब यहां पे भी अगर आप उन मुनकरीन को जौन से जो कलाम खुदा
के मुनकरीन हैं, जो उसके हुक्मों को ना मानने वाले हैं, और दूसरों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि खुदा के हुक्मों को जो उनसे है मत माने। उसका हुक्म जिसमें बरकत का हुक्म है, जिसमें बरकत का वादा है, उस बरकत को हासिल ना कर सकें, और खुदा कदूस की बरकत को हासिल ना करने का सबब जो है वो शैतान ही सिर्फ ठहरता है। आप जो उनसे एबार 11 बाब 45वीं आयत में भी फिर देखते हैं कि वहां पे भी कलाम खुदा यूं बयान कर रहा है कि ये वो मैं खुदा कदूस हूं जो आपको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूं, इसलिए आप अपने आप को पाक रखना, इसलिए पाक रखना क्योंकि मैं पाक हूं। तो फिर जौन सा है, अगर सबर जौन सा है उसको लिंक करते हैं, क्योंकि वो खुदा कदूस ने मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाए हैं, तो यहां पे भी खुदा कदूस मारे हैं मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूं, इसलिए अपने आप को पाक ठहराना क्योंकि मैं पाक हूं। तो फिर ऐसे लोगों को अपने आप को पाक ठहराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये तो उनके मुताबिक महज हुक्म बनी इस्राएल के लिए ठहरता है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम जो उनसे है कलाम खुदा से सीखते हैं कि कलाम खुदा हमें यह सिखाता है अपने कलाम की बदौलत जब हम अपने ज़हन को खोलते हैं ताकि उसकी तरफ रुजू करें, उसके कलाम को मनोवन सीखने की कोशिश करें, ना कि अपनी मिशनों के दायरे के अंदर रहते हुए, ना कि अपने कलाम सुनाने वालों की नासमझी के बायस उनके कलाम को जो मसख करके पेश करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक जो है कलाम खुदा ने हमें सिखाया कि जो है सब जो है जो खुदा कदूस का 7वां दिन है वो उसकी तख्लीक कायनात के 7वें रोज खुदा कदूस मुकर्रर करते हैं, उसे मुकद्दस ठहराते हैं, हमारे लिए ठहराते हैं ताकि हम उसकी हजूरी में आ सकें और उस बरकत को जिसका वादा उसने किया है उसको हासिल कर सकें। दूसरा जो उनसे यहाँ पे इस्तिस्ना की किताब में रीजन सबत को मनाने की बनी इसराइल को जो उनसे यूं बयान की जा रही है कि आपका ना सिर्फ खुदा तख्लीक करने वाला खुदा है बल्कि वो आपका रिडीमर भी है, आपका वो बचाने वाला भी है, आपको रिहाई देने वाला भी है, इसलिए भी आप पर सब जो है वो लाजम ठहरता है। हम खुदा कदूस का शुक्र करते हैं कि हम उसके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदा कदूस के से कि हमें ईमान में मजबूती बख्शें, हमें जो है वो तौफीक बख्शें कि हम उनके सिखाए हुए उसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जो उनसे बसर कर सकें, ना कि जो उनसे अपने उन कलाम सुनाने वाले उन अपनी समझ के मुताबिक जो है अपनी जिंदगियों को जो है वो गुमराही की तरफ जो है रखते हुए उस अबदी जो उनसे गुलामी में दाखिल हो सकें जहां पे हमारा जो जलना होगा सदा के लिए और उसकी बरकतों से महरूम हम ठहरेंगे। हम आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो उनसे है हम खरूज 8 बाब उसकी 11 से खरूज 20 बाब उसकी 8 से 11वीं आयत और इस्तिस्ना 5 बाब 12 से 15वीं आयत जो उनसे है उसको हम आयत बायत जो उनसे है वो तफसील से सीखेंगे। इन दोनों जो उनसे है जो मकसद है सबत को मनाने के कि वो हमारा तख्लीक करने वाला खुदा है और वो हमारा बचाने वाला खुदा है, इन दोनों मकसदों को हम नेक्स्ट टाइम जो है वो सीखेंगे। खुदाए कदूस जो है हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अपने नाम की जो उनसे है बदौलत जो है हमें अपने वादे के मुताबिक बरकतों पर बरकतें दें। आमीन।